Good morning, students. We are going through chapter 1 from the Vistas, and the title of the chapter is The Third Level. Children, we know that this chapter is written by Jack Finney. Jack Finney, who is considered the famous writer of his time. Children, we have read that the main character of this chapter is Charlie. Charlie, who was a 31-year-old ordinary person, and in the previous lectures we have read that somehow or the other Charlie reached the third level. He had been on the third level of the Grand Central Station, and he had also given a wide description of the things whatever he saw there, and about the persons whom he met. बच्चों, हमने पढ़ा कि चार्ली, जो कि इस चैप्टर का नरेटर है, वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया। उसने वहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखी, उन सब वस्तुओं के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया है उसने। और व्हेन ही केम टू द टिकट विंडो, ही केम टू नो दैट ही वुड बी एबल टू परचेज द टिकट्स फ्रॉम देयर एंड कुड गो anywhere in the United States. So he wanted to purchase 2 tickets to Galesburg, Illinois. He wanted to go to Galesburg with his wife Louisa. Okay, students. And then when he came to the ticket window and gave the money to the clerk at once frowned and told him that was not the money that was in use. And the clerk also threatened him if he would try to befool him, he won't be able to go far away from there, because the clerk would at once inform the police. At this, Charlie got afraid and at once turned away and got out fast. अब देखिए, जब क्लर्क ने उसे धमकाया तो चार्ली एकदम भयभीत हो गया और वो एकदम बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गया, ये सोचते हुए कि 1894 में भी जेल जाना इतना अच्छा नहीं। Now children, we are going to start from the next paragraph. And that was that. I left the same way I came, I suppose. और नरेटर कहता है, चार्ली कहता है, और वह ये था, मेरे विचार से मैं वहीं से वापस आया जहाँ से गया था, जैसा कि मैं मानता हूँ। Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. अब देखिए, कहता है कि अगले दिन लंच के समय मैंने बैंक से $300 ड्रा किए, निकाले, और लगभग उतने ही मेरे पास थे, और $300 के बदले, कहता है, मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी। मीनिंग thereby Charlie said that the next day he at once drew out $300 from his bank account. That was all the money he had
at that time, and he bought old style currency for that, and that really worried my psychiatrist friend, जिससे कि मेरा जो मनोचिकित्सक मनोविशेषज्ञ जो फ्रेंड था सैम, वो वास्तव में चिंतित हो गया। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium। कहता है आप किसी भी कॉइन डीलर से आप ओल्ड मनी ओल्ड करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन आपको उसका एक प्रीमियम देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा। माई $300 bought less than 200 in old style bills। कहता है मेरे $300 के बदले मुझे जो ओल्ड स्टाइल करेंसी थी वो लेस देन 200 से भी कम प्राप्त हुई। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे चिंता नहीं थी, बिकॉज एग्स वर 13 cents a dozen in 1894, क्योंकि 1894 की बात थी और उस समय 1 दर्जन अंडे की कीमत 13 cents थी। एग्स वर 13 cents a dozen in 1894। Okay, children? The author tells us in the voice of the narrator, but I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough। कहता है कि फिर से, परंतु मुझे दोबारा वो कॉरिडोर नहीं मिले जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक ले जाते हों। यद्यपि मैंने कई बार प्रायः उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की। मीनिंग देयर बाई द नरेटर tells us that he never found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station, although he had tried often enough। Lusa was pretty worried when I told her all this, and did not want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped। अब देखिए, तो the narrator tells us when he told his wife Lusa about that, तो she was pretty worried। कहता है जब मैंने लूसा को इसके बारे में बताया तो वो बहुत चिंतित हुई। She became very much worried, and she did not want me to look for the third level anymore। और वो नहीं चाहती थी कि मैं और अधिक थर्ड लेवल की तलाश करूं। And after a while I stopped, और कुछ समय के बाद मैं रुका। I stopped trying, searching or finding the third level। I went back to my stamps। कहता है again he engaged himself in the habit of stamp collection। कहता है मैंने दोबारा अपने आप को स्टाम्प कलेक्शन में लगा दिया। But now we are both looking every weekend, because now we have proved that the third level is still there। अब देखिए, फिर नरेटर कहता है कि हम एवरी वीकेंड, हर वीकेंड हम दोनों ही थर्ड लेवल को देखने जाते हैं, थर्ड लेवल को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ थे कि दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ है। द नरेटर टेल्स अस दैट he and his wife
were going in order to search or find the third level every weekend, because they had solid proof that the third level was also there in existence. My friend Sam Wiener disappeared. कहता है मेरा फ्रेंड सैम वीनर जिसका नाम था, तो वो वॉज ए साइकिट्रिस्ट, जो कि एक साइकिट्रिस्ट था, तो ही ऑल एट वंस डिसअपियर, वो अचानक ही डिसअपियर हो गया, लुप्त हो गया, गायब हो गया। एंड नोबडी न्यू वेयर, और कोई नहीं जानता था कि वेयर ही हैड गॉन। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय, लेकिन मुझे थोड़ा संदेह था। द नरेटर हैड सम डाउट्स बिकॉज सैम वाज ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था, शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेस वर्क, और कहता है कि मैं उसे गेस वर्क के बारे में बताया करता। द नरेटर यूज टू टेल हिम अबाउट गेस वर्क। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं उसे बताता था कि मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहता था कि उसे उस स्थान की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, उसे गेस वर्क के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता था। ही ऑलवेज लाइक टू लिसन टू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी गेस वर्क, एंड दैट वाज वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और वह वहीं है, ठीक है, 1894। Because one night fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? अब देखिए आगे बताता है कि when he engaged himself in the habit of stamp collection, so one night when he was looking at the collection of his stamps, कहता है क्योंकि एक रात्रि मेरे स्टाम्प कलेक्शन मेरा जो स्टाम्प कलेक्शन था उसमें मैंने पाया, आई फाउंड, वेल, ठीक है, मैंने पाया, डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डे कवर? हियर the narrator tells us about the meaning of first day cover, कि when a new stamp is issued, कि जब कभी कोई नया स्टाम्प इशू किया जाता है तो स्टाम्प कलेक्टर्स buy some and use them to mail envelopes to themselves on the day of the very first day of the sale, and the postmark proves the date। अब देखिए कहता है कि जब कोई नया स्टाम्प इशू किया जाता है, जब भी कभी गवर्नमेंट के द्वारा कोई नया स्टाम्प इशू किया जाता है, तो जो स्टाम्प कलेक्टर्स हैं वो कुछ टिकट खरीदते हैं, कुछ स्टाम्प परचेज करते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो देखिए जो स्टाम्प कलेक्ट करने वाले लोग हैं वो कुछ टिकट खरीद लेते हैं और उनका प्रयोग अपने आप को, स्वयं को ही लिफाफे भेजने के लिए प्रयोग करते हैं, बिक्री के पहले दिन की। एंड द पोस्टमार्क प्रूफ द डेट। अब देखिए, और जो डाक घर की जो पोस्ट ऑफिस की जो मोहर होती है, सील होती है, वो तारीख का प्रूफ होता है, उस डेट का प्रूफ होता है।
द एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर। तो देखिए वो एनवलप है, उसे फर्स्ट डे कवर कहकर पुकारा जाता है। दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी नहीं खोला जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, यू कैन पुट ए ब्लैंक पेपर इनसाइड द एनवलप, और आप एनवलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर रख सकते हैं। चिल्ड्रन, यू नो दिस, डू यू कम टू नो द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट डे कवर। अब फर्स्ट डे कवर का मतलब आपको पता चल गया होगा कि जब कोई नया स्टाम्प इशू किया जाता है तो स्टाम्प कलेक्टर कुछ टिकट को परचेज करते हैं और एक एनवलप पर अपने ही एड्रेस पर उसे पोस्ट करते हैं, और जो एनवलप पर पोस्ट ऑफिस की सील होती है वो उसका प्रूफ होता है। दैट इज़ द प्रूफ ऑफ द डे। Okay students, so we shall go through the next lecture in the next video. Thank you.